کہ مضبوط خاندان اور مضبوط سماج، اس کی ایک مہم چل رہی ہے پورے ہندوستان کی سطح پہ، اور پورے ہندوستان میں جو جماعت اسلامی ہند کے ویمنس ونگ ہے ان کی طرف سے ہی یہ پورے ملک میں مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی مہم کا یہ حصہ ہے جو پھگواڑے میں کیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی کہ سماج کیا ہوتا ہے، مضبوط سماج کیا ہوتا ہے، اور مضبوط سماج بن کر کے کس طرح سے ایک مضبوط سماج بن سکتا ہے، اور جب مضبوط سماج بن جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اندر میل محبت، پیار اور آپسی تعلقات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ اسی بنیاد پہ آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس میں تمام لوگوں کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، کہ وہ آئیں اور اس طریقے سے بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا خاندان اچھا سے اچھا ہو، مضبوط سے مضبوط ہو، تاکہ ایک بہتر سماج بن سکے۔ ان باتوں کے بعد چونکہ ہم تمام کو پیدا کرنے والا رب ہے، آلمائٹی اللہ ہے، پرمیشور ہے، تو اس نے جو ہمارے لیے رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری بہتر زندگی کے لیے اس دنیا میں بھی، اس دنیا کے بعد بھی جو پیدا کیا ہے، اس نے ایک ڈیوائن بک جسے قرآن مجید کہی جاتی ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اینجلس کے ذریعے سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، پیغمبر ہے، ایشور دوت ہیں، ان پر نازل کی وہی کتاب اور اس کی تعلیمات جو ہے ہماری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اس دنیا کے بعد کی جو زندگی اس میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس قرآن کی تلاوت سے ہم اپنے اس پروگرام کا شروعات کریں گے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایمن سے گزارش کریں گے کہ وہ تلاوت قرآن پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ لیتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام نازل فرمایا ہے، اور ان لوگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ صدق اللہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن
इस्मुन वला तजस्ससु वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ये सूरह हुजरात की दूसरी रुकू है जिसकी मैंने तिलावत की। इसका तर्जुमा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। मुमकिन है जिसका मजाक उड़ाया जाए यानी जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो उनसे बेहतर हो, और न औरतें किसी औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो। मजाक उड़ाने वालियों से वो बेहतर हो जिनका मजाक उड़ाया जाए। और न आपस में एक दूसरे को ऐब लगाओ और न एक दूसरे को बुरे नाम दो। ईमान के बाद फिस्क व फजूर के नाम बहुत ही बुरे हैं। जो लोग तौबा न करें तो वही लोग जालिम हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत से गुमान करने से बचो, यकीनन बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। और ऐब न ढूंढो और तुम में से बाज़ की गीबत न करे यानी चुगली न करे, एक दूसरे की बुराई न करे। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम इसको नागवार ही जानोगे। और अल्लाह से डरो, यकीनन अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। ऐ लोगों यकीनन हमने तुमको पैदा किया है एक मर्द और एक औरत से। हमने तुमको ख़ानदान और कबीलों में बांट दिया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में सबसे बाइज़्ज़त अल्लाह के नज़दीक वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। यकीनन अल्लाह जानने वाला है और ख़बर रखने वाला है। अल्लाह को एक जाना और अपने मालों और अपनी जानों के ज़रिए यही लोग दरअसल सच्चे हैं। कह दो, क्या तुम अपना दीन अल्लाह को जतलाते हो, हालांकि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। वो तुम पर एहसान धरते हैं कि वो मुसलमान हो गए हैं। कह दो, मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान मत करो, बल्कि तुम पर एहसान तो अल्लाह करता है। उसने तुमको ईमान की हिदायत दी है। अगर तुम सच्चे हो, यकीनन अल्लाह आसमानों और ज़मीन का गैब जानता है। गैब मीन्स अल्लाह हर चीज़ को जानता है कि वो आसमान में क्या चीज़ पोशीदा है, ज़मीन में क्या चीज़ छुपी हुई है, वो हर चीज़ को जानता है। अल्लाह ताला तो दिलों के गैब को भी जानता है। वो इंसान की रगे जान से भी करीब है, यानी वो खून की तरह दौड़ता है। इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला, वो हर चीज़ का इल्म उसके पास है। अल्लाह जो कुछ तुम अमल करते हो इस पर निगाह रखने वाला है। यानी पहले इंसान को क्या हिदायत दी गई कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, यानी मर्दों को मर्दों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न औरतों को औरतों का मजाक उड़ाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्दों को औरतों का और औरतों को मर्दों का मजाक उड़ाने की खुली छूट दी गई है। दरअसल इस्लाम औरतों और मर्दों की मखलूक सोसाइटी का कायल ही नहीं है। वो बेतकल्लुफ़ क्लब, घरों और मखलूत महलों में हंसें और ठट्टेबाजियाँ करें, एक दूसरे का मजाक उड़ाएं। मजाक उड़ाने और तमस्कुर करने पीछे दरअसल आदमी का घमंड और गुरूर और तकब्बुर काम करता है। यानी जब इंसान किसी को देख के हंसता है तो ऐसा लगता है वो मुझे बुरा समझेंगे, क्यों मेरे पर हंस रहे हैं। खुद इंसान का एक नेचुरल ये चीज़ है, इंसान सोचने लगता है कि क्यों मुझे देख के वो हंस रही है, आखिर क्या वजह है। यानी मैं बड़ी हूँ, यानी मैं अच्छी हूँ, या मैं अमीर हूँ, दूसरा गरीब है। इंसान अपने आप को कमतर महसूस करता है। इसलिए कुरान ने इंसान से ये इशारा किया गया है, कोई मर्द किसी औरत का या औरत किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए। रसूलों से, अल्लाह वालों से, पीरवाने रसूल से, अलम बरदान दीन हक से, उलमा से, हक से, मशाइख अज़्ज़ाम से, बुजुर्गान दीन से, मुजाहिदीन इस्लाम से, दायान दीन से खुशगुमानी और हुस्न ज़न रखना चाहिए। अदालतों में फ़ैसला करने, पंचायतों और शरई अदालतों में क़ज़िये निपटाने के लिए रोइदाद मुक़दमे से गवाहों की गवाही से या दस्तावेजी से सबूत से इल्म यकीन नहीं, सिर्फ गुमान हासिल ये होता है। इसलिए गुमान गालिब पर अमल किए बगैर चारा नहीं। इस गुमान की मुमानियत नहीं है, बल्कि पांचवी हिदायत ये दी गई है कि तुम तजस्सुस ना करो, दूसरों के यानी राज यानी भेदों से
خفیہ باتیں، عیوب اور کمزوریاں اور برائیاں تلاش مت کرو. یہ برائی تو ہمارے سماج میں بالکل عام ہے کہ ہر ایک دوسرے کے پیچھے رہتا ہے. اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس کی بہو نے کیا کیا، اس کی بیٹی نے کیا کیا، اس کی بیوی نے کیا کیا. ہمارے معاشرے میں یہ برائی سب سے عام ہے. گھروں میں مت جھانکو، تم تاک جھانک نہ کرو. پرائیویٹ اور ذاتی خطوط کے کسی کے مت پڑھو. دو آدمی رازدارانہ باتیں کر رہے ہوں تو کان لگانے اور سننے کی کوشش نہ کرو. تجسس اور کھود کرید کرنا، چھپے عیبوں اور برائیوں کو تلاش کرنا اسلامی معاشرے کے افراد، عدالتوں، پولیس، حکومتی اداروں سبھی کے لیے ممنوع ہے. کھلے ہوئے جرائم اور ثابت شدہ واضح نصیحت کے ذریعے کی کوشش کرنا چاہیے. مگر انسان کو اپنے آپ سے سوچنا چاہیے کہ ہم کو کیا ضرورت ہے کسی کی جگہ انسان اپنے آپ رکھے. خود انسان اتنا مصروف زندگی ہے، اپنی زندگی اتنی مصروف ہے کہ وہ دوسروں کے پاس دوسروں کے عیب کریدنے کا یا اس کے تجسس کرنے کا یا اس کے رازدارانہ باتیں سننے کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ برائی ہمارے معاشرے میں عام ہے. یہ چھٹی ہدایت دی گئی کہ بعض کی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہ بھی برائی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، کیونکہ ایسا قبیح اور غلیظ گناہ جیسے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، کون انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یہ بہت ہی ناپسند، سن کے ہی کراہیت لگتی ہے. یہ نوچ کر کون اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ غیبت یہ ہے کہ آدمی کسی کی ایسی برائی جو اس کے پیٹھ پیچھے کرے، جو اگر اسے معلوم ہو تو اسے برا معلوم ہو. اگر وہ عیب یا برائی جو بیان کی جا رہی ہے وہ اس کے اندر نہ ہو تو اگرچہ اسے غیبت نہیں کہہ سکتے، بلکہ دوسرا گناہ جسے الزام یا تہمت کہتے ہیں. کسی بے گناہ پر کوئی تہمت لگانا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، وہ بھی بھیانک اور بڑا قبیح گناہ ہے. محض لطف لینے کے لیے، محض کسی کو بدنام کرنے کے لیے، بغیر کسی شرعی ضرورت کے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت اور حرام ہے. مگر خود اس شخص کی یا دوسروں کی یا معاشرہ اور سوسائٹی کی خیرخواہی اور بھلائی کی خاطر پیٹھ پیچھے برائی کرنا جائز اور بعض جگہ ضروری بھی ہے. مثلا کسی کے کفر و شرک، بے دینی یا فسق و فجور، بدعت سے پبلک کو بچانے کے لیے اسے خیالات، اعمال سے لوگوں کو آگاہ کرنا. 7ویں ہدایت یہ دی گئی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی معصیت اور عذاب سے بچنے کی فکر کرو اور تقوی اختیار کرو. اس کے لیے ترساں اور لرزاں رہو، یعنی اس کے لیے پریشان رہو. کسی کا مذاق اڑانا، تانا دینا، عیب چینی کرنا، برے ناموں سے، برے القاب سے کسی کی دل آزاری کرنا یعنی دل دکھانا، کثرت سے گمان کرنا، بدگمانی میں مبتلا ہو جانا، بلا وجہ گمان کی بنیاد پر کسی کے خلاف رائے قائم کرنا، اقدام کرنا، تجسس کرنا، عیب ٹٹولنا اور غیبت کرنا، یہ سب گناہ ہے. خوف خدا اور خیال آخرت کے خلاف، تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے. اگر تم ملوث ہو گئے ہو یعنی اس سے مبتلا ہو گئے ہو، تم ان سے توبہ کرو اور سچی توبہ کے لیے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لو. اس طرح اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور 8ویں ہدایت تمام انسانیت کو خطاب کر کے دی گئی ہے کہ اللہ کی توحید اور یکتائی اور وحدت الہ کی دعوت کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. اسی کی ہدایت کو نظام تسلیم کرنے کی ہدایت کے ساتھ، اس ہدایت کے ساتھ اللہ کے نبیوں کی قیادت کو اپناؤ. اس کے ہدایت کے ساتھ آخرتی کامیابی اور فلاح کو پیش نظر رکھو. یہ ہدایت دی گئی ہے کہ سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں، یعنی وحدت خدا، وحدت نظام، وحدت قیادت، وحدت منزل کے ساتھ وحدت آدم کی طرف اسلام ہدایت کرتا ہے تاکہ عالمگیر برداری اور معاشرہ وجود میں آ سکے اور انسانی اخوت، بھائی چارہ اور مساوات اور انسانی برادری ہو سکے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں اپنی بات کو شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں. اخوت کی دنیا بسا کر تو دیکھو، اخوت کی دنیا بسا کر تو دیکھو، چراغ محبت جلا کر تو دیکھو، تمہارے قدم پہ چلے گا زمانہ، ذرا اپنی ہستی مٹا کے تو دیکھو. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امید ہے میں نے جو بات کہی وہ شاید آپ کے دل میں اتر جائے اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عہد کر لیں. السلام علیکم. سب اچھے سے پیش آئیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، یعنی ماں باپ کا ہر وقت خیال رکھیں گے تو ماں باپ ہم سے خوش ہوگا. جب ماں باپ ہم سے خوش ہوگا تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا. اور اگر ماں باپ کو ہم ناراض کریں گے، ماں باپ کو دکھ دیں گے، ماں باپ کو ستائیں گے تو اللہ بھی ہم سے جو ہے ناراض رہے گا. اس لیے ماں باپ کی جو ہے ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے. اس لیے
अल्लाह की बंदगी के साथ साथ में जो है माँ बाप को भी खुश करने की कोशिश करा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो कहना सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमावे। व आखिरु दावाना अन्ना बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपके सामने मौलाना अख्तर साहब ने ये बात रखी कि माँ बाप की क्या अहमियत है, माँ बाप की सेवा कितनी ज़रूरी है, और माँ बाप की सेवा किए बगैर ना हम इस दुनिया में अच्छे से रह सकते हैं, न इस दुनिया के बाद अच्छे रह सकते हैं। अगर हमारे वजह से, हमारे तौर तरीक़े से, हमारे रहन सहन से, हमारे बोल बानी से किसी से भी अगर हमारे माँ बाप को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होती है तो हमारा सब कुछ किया कराया बेकार है। अभी उन्होंने एक बात कही, हुकूकुल्लाह यानी रब के हुकूक, जो रब की इबादत करते हैं हम, जो रब की पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, हम उसकी करें, लेकिन अगर हम बंदों के, उसके इंसानों के बातों को अगर नहीं मानेंगे, नहीं उसके मुताबिक काम करेंगे तो हमारा सब कुछ किया कराया कारक हो जाएगा। आज की तारीख में आप देखती हैं तमाम लोग के चुगली यानी किसी के पीठ पीछे शिकायत, गीबत यानी किसी के पीठ पीछे वो बात कहना जो उसको बुरा लगे, ये एक आम चलन हो गया। हालांकि बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर हम ये चीज़ करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि हमारा सारा किया कराया बेकार हो जाएगा, अकारत हो जाएगा। इसलिए कि रब हमसे यही कहेगा कि जिस बंदे की तुमने शिकायत करी थी, जिस बंदे की तुमने चुगली करी थी, जिस बंदे का तुमने अपमान किया था, जिससे उसको तकलीफ पहुंची थी, उससे पहले उसको माफ़ी मांगो, फिर और जब वो माफ़ कर देता है तब जाके तुम्हारे पाप धुल जाएगा। तो ये हमारी ज़िंदगी में अगर जब तक नहीं आएगी तब तक एक अच्छा ख़ानदान नहीं बन सकता है। हमारे बीच वो मोहब्बत और शफ़क़त और प्यार नहीं पैदा हो सकता है जब तक कि हम एक दूसरे के दुख को, दूसरे की तकलीफ़ को, दूसरे की खुशी को, दूसरे की गमी को अपना गम, अपना सुख, अपनी खुशी ना समझें। इसलिए इस बात की ज़रूरत है एक अच्छे ख़ानदान के लिए कि हम एक दूसरे के दुख दर्द, दूसरे के सुख में काम आए, ठीक है। तो इन बातों को अभी आपके सामने और आपके सामने रखा। अब आपके सामने कुछ वीडियो पे प्रोग्राम। माँ बाप, आज मेरा मौजू यानी मेरा टॉपिक है मजबूत खानदान और मजबूत समाज, यानी स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। मुअज़्ज़ज़ सामिन सामियात, अंदाज़ बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़ बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मोहतरम भाइयों बहनों, आइए हम सब गौर करें कि हम सब यहाँ किस मकसद के तहत जमा हुए हैं, किन गंभीर मसाइल से हमारा मुआशरा दो चार है। कुरान हमसे कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यानी तुम ही वो बेहतरीन उम्मत हो जिसको नेकी का हुक्म देने के लिए कहा गया है और बुराइयों से रोकने के लिए कहा गया है। इस आयत करीमा से पता लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है तो हमारे पर बहुत सी जिम्मेदारी आयद कर दी है। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसरूरुन अन रइयतिही, यानी तुम में से हर एक से अपनी उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। हर इंसान अपने अमाल का जिम्मेदार है, हर इंसान अपनी कारकर्दगी का जिम्मेदार है कि वो उसने दुनिया में आया है तो उसके आने का मकसद क्या है, उसने क्या किया है, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, उसने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की है, अपने वालिदैन को कैसे रखा है, खुद अपनी ज़िंदगी उसने कैसे गुजारी है। और फिर हर इंसान को एक दिन मौत का मज़ा चखना है।
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मौत का वक्त तो एक दिन मुअय्यन है, मौत का वक्त तो एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। देखो एक दिन मौत आ जाएगी अंतुम गाफिलून, देखो एक दिन मौत आ जाएगी अंतुम गाफिलून, कब तक आंखों पर रहेगा पर्दे ला युबसिरून। मौजूद सामीन, हम अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं, मजबूत खानदान और मजबूत समाज। खानदान की पहली इकाई मियाँ बीवी है। एक औरत और मर्द के निकाह के रिश्ते में बनते ही खानदान का वजूद शुरू हो जाता है। निकाह के मौके पर कुरान की जो आयत पढ़ी जाती हैं उसमें ज़ौजैन को अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने और एक दूसरे के हुकूक़ व फ़राइज़ की अदाई के सिलसिले में अल्लाह की निगरानी का सबक ज़हन नशीन कराया जाता है। कुरान निकाह के मुआहदे को मीसाकन गलीज़ा यानी मजबूत अहद से ताबीर करता है और शौहर और बीवी के रिश्ते को मवद्दत और रहमत के जज्बात, इसार व कुर्बानी, अफ़ू व करम, एहसान, एक दूसरे की कदर शनासी, हुकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी खानदान की मजबूती में गारे का काम अंजाम देती है। शौहर और बीवी दो मुख्तलिफ खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों की शख्सियत मुख्तलिफ होती है, दोनों के मिजाज में रहन सहन में इख्तलाफ होता है, यानी दो घर, एक लड़की दूसरे घर से आती है और लड़का दूसरे घर का होता है, लड़की अलग मिजाज की होती है, लड़का अलग मिजाज का होता है। लेकिन इस्लाम ने औरत का एहतराम करने को, एक दूसरे की खूबियों पर यानी एक दूसरे की अच्छाई पर नज़र रखने को कहा है और न किसी को कुरेदने को, न किसी की बुराइयों पर नज़र रखने को कहा है और खामियों को नज़रअंदाज करने की तालीम देता है और मर्द को हिदायत करता है कि औरतों के साथ भले तरीके की ज़िंदगी बसर करो। औरत का क्या मुकाम है कुरान पढ़ के देख, औरत का क्या मुकाम है कुरान पढ़ के देख, उसको ज़लील ख़ार समझना गुनाह है। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया। मजबूत खानदान और मजबूत सोसाइटी को मुस्तहकम बनाने में बीवी का सबसे अहम रोल है। वो नेक हो, सौले औरतें वो इताअत-शुआर होती हैं, मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं, उनके जान माल, उनके इज्जत आबरू की हिफाजत करती हैं। माँ की जिम्मेदारियों में से सबसे अहम जिम्मेदारी औलाद की परवरिश और उनकी तरबियत है, क्योंकि माँ का गोद पहला मदरसा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है दर्सगाह अव्वली आगोश मादरी, है दर्सगाह अव्वली आगोश मादरी, क्योंकि डे वन से जब से बच्चा पैदा होता है तो माँ अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर देती है, उसको कैसे सुलाना है, कैसे पढ़ाना है, उसको कैसे रखना है। इसीलिए कुरान ने भी माँ की क्या मिसाल दी है, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। अपने बच्चों की किफ़ालत की और माँ पर अपने बच्चों की किफ़ालत की जिम्मेदारी डाली गई है। माँ बाप की अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि औलाद की बेहतर से बेहतर तरबियत कर सके ताकि उसकी आखिरत संवर सके और जब वो जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बन सके। आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने औलाद को इतनी अच्छी तालीम दीजिए, इतनी बेहतरीन उनकी तरबियत कीजिए, इतनी अच्छी उनकी परवरिश कीजिए ताकि वो अल्लाह के यहाँ आपके ही अपनी पकड़ से बच सके और अपने वालिदैन को अपना पकड़वा सके। आखिरत में अमल ही नेक काम आएंगे, आखिरत में अमल ही नेक काम आएंगे, पेश है तुझको सफ़र ज़्यादा सफ़र पैदा कर। वो बच्चे ज़्यादा जराइम के शिकार होते हैं जिनकी सही तरबियत नहीं होती, जिनकी सही परवरिश नहीं होती। क़यामत के दिन जिसको डूम्स डे कहा गया है, आखिरत में औलाद के तई भी सवालात होंगे कि अपने बच्चों की सही तरबियत क्यों नहीं की, उनको दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता क्यों नहीं किया। इसलिए मौजूद सामीन, मेरी प्यारी बहनों और माओ, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और अपने घर और अपने ख़ानदान को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आज परवरिश पाएंगे तो कल ये देश है, जैसे किसी ने कहा है, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो इन बच्चों की परवरिश आप सही नहीं करेंगी तो आगे ये बच्चे आगे क्या करेंगे। आगे मैं खुद देखती हूँ, हमारे मौलाना साहब आते हैं पढ़ाने के लिए, आखिर ये तो पता लगता होगा ना कि हाँ बच्चे जा रहे हैं, कुरान पढ़ने जा रहे हैं, कम से कम उनको वजू नहीं करा सकती, मुँह हाथ तो धो सकती हैं, अच्छे कपड़े तो पहना सकती हैं, साफ कपड़े तो रख सकती हैं, लेकिन बच्चे मेरे घर में घुसते हैं, उनके पास से अजीब सी महक आती है। मैं तो कुछ नहीं कहती, लोग सोचेंगे गरीब है, लेकिन प्लीज़
मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को कम से कम साफ सुथरा करके भेजिए, ताकि उनको ही पता लगे कि हाँ मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, मैं कुरान को हाथ लगाने जा रहा हूँ, मैं अरबी पढ़ने जा रही हूँ, ताकि उनको अदब, इससे क्या होगा कि उनके अंदर अदब पैदा हो कि हाँ मैंने किसी चीज़ अजीम चीज़ को छुआ है, टच किया है, और उसके दिल, इससे उनके दिल में क्या होगा, इज्जत पैदा होगी। लेकिन क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे खेलते रहते हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं, वापस कुरान को लेकर चले आते हैं। उनको क्या पता लगा कि ये क्या किताब है, कहीं फेंकते हैं, कभी जमीन पर रखते हैं, कभी कहीं रखते हैं। रोज मैं इस चीज को टोकती हूँ। मेरी बात का प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि अपने बच्चों को सही तालीम दीजिए, क्योंकि ये आखिरत में आपकी इसकी पकड़ होगी। दूसरी तरफ औरत पर अपने वालिदैन की भी जिम्मेदारी आयद होती है, और अपने सास ससुर की भी जिम्मेदारी आयद होती है। औरत अपने माँ बाप की जिम्मेदारी तो बखूबी निभाती है, लेकिन आम तौर से हमारे माशरे में देखा गया है कि मियाँ बीवी में खलिश और झगड़े का सबब ये होता है कि वो अपने वालिदैन को पैसे क्यों देता है। सोचिए, जरा गौर कीजिए, कितनी मेहनत और मुशक्कत से वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपनी तमाम ख्वाहिशों को तरजीह देते हैं, और अपनी कम सलाहियत और कम पैसे के बावजूद वो अपने बच्चों में कोई कमी नहीं रखते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके दिल में अपने बच्चों के तई उम्मीद उजागर होती है, उम्मीद जागती है कि कल मेरा बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा तो मुझे कुछ कमा के देगा। फिर कैसे उनकी गैरत जवाब दे जाती है, और वालिदैन की मशक्कत, उनकी हिचकियाँ, उनकी सिसकियाँ कैसे वो भुला बैठते हैं। वो माँ का 9 महीने पेट में पालना, फिर रात भर वो जगती है अपने बच्चों की खातिर, और उनकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करती है, और दूसरों की खातिर दूसरों के लिए दूसरों से झूठ बोल देती है। आदमी कहता है कि माँ अपने बच्चों के लिए झूठ बोल जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, ये वो लोग जो लड़के होते हैं कुछ वक्त के लिए भूल जाते हैं उनका भी यही हाल होने वाला है जो आज उसने किया है। इससे घर और खानदान और ताल्लुकात में गिरावट आती है और घर बर्बाद हो जाता है। सबसे तारीफ की बात तो ये है कि लड़कियां कभी अपने माँ बाप के मुखालिफ नहीं होती, लड़कियां कभी अपने माँ बाप के अगेंस्ट में नहीं जाती, लेकिन लड़के दूसरों की बातों में आकर, अपनी बीवियों की बातों में आकर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्या उसने अपने माँ के गोद में परवरिश नहीं पाई? क्या उसने किसकी माँ ने उसको जन्म नहीं दिया? क्या उसकी माँ ने उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं की? आखिर लेकिन इंसान की गैरत उस टाइम जवाब दे जाती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसकी पकड़ होगी। एक ऐसी शान पैदा कर कि बातिल थर थरा उठे, एक ऐसी शान पैदा कर कि बातिल थर थरा उठे, नजर तलवार बन जाए, नफस झनकार बन जाए। इस्लाम ने अपने मानने वालों को हिदायत दी है कि रिश्ते के इंतखाब में दीन को तरजीह दें और निकाह में सादगी को मलहूज रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। लेकिन आज हमारी अक्सरियत ने दौलत को मेयार और इज्जत बना लिया है। जहेज के लेन देन और मुसरिफाना रसूमात ने निकाह को मुश्किल बना दिया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कैसे किसी गरीब की बेटी बने दुल्हन, कैसे किसी गरीब की बेटी बने दुल्हन, रिश्ता तलाश करते हैं जहेज देख के। तलाक की बढ़ती हुई शरह, जहेज के लिए हर आसानी, घरेलू तशद्दुद, लड़ाई झगड़ा, ख्वातीन से बदसलूकी, खानदान के बुजुर्गों को बोझ समझने और उनकी जिंदगियों को खुशियों से महरूम रखने के वाकयात सामने आ रहे हैं। मतलब जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो पैसे देकर उनको ओल्ड एज होम में रखा जाता है। यह हमारे समाज के ऊपर एक कलंक है, एक तमाचा है। कैसे उनका दिल गवारा करता है कि अपने बूढ़े माँ बाप को एक दूसरी जगह डाल दें। कैसे वो ये भूल जाते हैं कि उनका भी कभी वक्त यही आना है, उनके बच्चे भी उनको ले कहीं फेंक देते हैं। उनकी खिदमत तो हो जाती है, लेकिन उनको मोहब्बत, वो मुशक्कत, वो सलूक, वो प्यार नहीं मिल पाता है और उनका दिल टूट जाता है कि मेरा बच्चा का उसने ये किया है। वो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे? इसलिए और खुदा के वास्ते अपनी गलतियों पर नाला होइए और अपने बुजुर्गों की इज्जत कीजिए। हमारे यहाँ भी खानदानी जिंदगी अल्लाह के रसूल की दी हुई हिदायत से दूर होती जा रही है। सूरत हाल ये है कि मुस्लिम नौजवानों में से शादी से बेजारी, जिम्मेदारियों से फरार, जिंदगी के आशाइशात के हुसूल के लिए शादी को मौखर करना जैसे रुझानात परवान चढ़ने लगे हैं। ज़ईफों और बुजुर्गों को इज्जत न देना, औरतों को अपनी बेटियों को विरासत में ना हिस्सा न देना, वो खराबियां हैं जिनका मुस्लिम माशरे में इजाफा होता जा रहा है। इससे घर और समाज दोनों मुतासिर होते हैं। इसलिए मसाइल का हल को ढूंढना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह की अता करदा नेमत उज़्मा की रोशनी और रहनुमाई में एक मिसाली इस्लामी माशरे की तामीर करें, जहाँ बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, खानदान, बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी की हकीकी मुसरत हासिल कर सकें और अपने मिशन की तकमील के लिए
अमन व सुकून और राहत के साथ अपना किरदार अदा कर सकें और उम्मत का एक मिसाली मुआशरे की तश्कील का फ़र्ज अदा करते हुए शहादत हक़ के ज़िम्न में अमली गवाही दे सके। अपनी बात को कुछ शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। ये औरतों के लिए बतौर ख़ास है। दाता ने धन दिया है तो दिल से गनी रहो, दाता ने धन दिया है तो दिल से गनी रहो, पढ़ लिख के अपने घर की देवी बनी रहो, पढ़ लिख के अपने घर की देवी बनी रहो। मशरिक़ के चाल ढाल का मामूल और है, मशरिक़ के चाल ढाल का मामूल और है, मगरिब के नाज और रक़्स का स्कूल और है। और आखिर में उख़ुवत की दुनिया बसा कर तो देखो, उख़ुवत की दुनिया बसा कर तो देखो, चराग़े मोहब्बत जला कर तो देखो, चराग़े मोहब्बत जला कर तो देखो, तुम्हारे कदम पर चलेगा ज़माना, ज़रा अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अपनी बात को मैं ही ख़त्म करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ हर औरत से, हर बच्चे से, ताकि वो अपने मेरी बात को उम्मीद है कि आप लोगों ने गौर से सुना होगा। अपना मिशन तैयार कीजिए कि हमने अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा है, हमारे आने का मकसद क्या है, हमें अपने वालिदैन की खिदमत कैसे करनी है, हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, ताकि आपका मुस्तकबिल भी ताबनाक हो सके, आपका मुस्तकबिल संवर सके। मेरा यहाँ सिर्फ भाषण देना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि मेरे लोग आए हैं ताकि मेरी बात को सुने, ताकि अल्लाह ताला के मैं भी इस पकड़ से बच सकूँ। हाँ, मैंने अपनी दावत किसी को पहुँचाई थी और तरबियत करेंगे आपके बच्चे, कल खुद उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसका रिजल्ट खुद आपके सामने आएगा। अच्छी तरबियत करेंगे तो भी और ख़राब तरबियत करेंगे तो भी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वमा अलैना इल्लल बलाग।